He is for army. This boy is done his 12th and he is for army. But don't worry. The SSB is same for 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एंड पीएचडी किए वालों के लिए. ये सारे लोग एसएसबी के लिए आते हैं and their standard is the same. I am using a language which is a mix of Hindi and English because this is the language which is allowed at the SSB. One reason. Second reason, I want to be a little more clear to you when I say in Hindi. Because if I keep speaking in English, you may not get everything that I want to say the way I want to say it. Okay? So I'll leave that here. I'll go start off straight away with what happens in SSB. Okay? What is the full form of SSB? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. पढ़ो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्या फर्क हुआ? आप लोग जो बोल रहे थे और ये जो लिखा हुआ है, क्या फर्क है? सर्विस में मतलब सिर्फ एक सर्विस होता है, सर्विसेज तो तीनों आएंगे. तुम करोगे? सर्विस मींस कंसीडर ओनली वन फोर्सेस, वन आर्म, one Navy, Air Force or Army, and services means all three. Means all three: Army, Navy, Air Force. The SSB is same for Army, Navy and Air Force. There is no difference in the selection procedure, selection process. For Air Force, especially who want to become pilots, who want to fly, there is an additional test called PABT, Pilot's Aptitude Test. That are you fit to become a pilot? It's a computer game you have to play. Video game, sorry. Okay? It's basically to see your acumen if you are fit to become a pilot. Some people have it, some people don't have it. I'll leave that. I'll come to SSB. SSB is for 900 marks. SSB is for 900 marks spread over 4 to 5 days. Spread over 4 to 5 days. The first day is your screening day. मालूम है? Yes, sir. What happens on the screening day? ठीक है? Clear? Because only if you get screened in, only then you attend the actual SSB. Screening in is not actual SSB. समझ में आया? Yes, sir. SSB होता है जो स्क्रीन इन हो गए बच्चे जिनको रख लिया गया, वो आगे 3 दिन या 4 दिन, ठीक है, जो करते हैं वो SSB की प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसीजर है. इट्स अ प्रॉपर scientific procedure. Screening in is to weed out those candidates who are unlikely to get recommended at the end of the SSB, who have no chance for them, or very, very, very remote chance of few people. Generally for them, no chance. One reason.
Second reason is also to manage the load, the candidate's load, workload of the SSB. Clear? Yes, sir. Therefore, screening becomes very important. That if you don't get screened in, आगे तो सबने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, दोनों ने। यूपीएससी में बैठोगे तो पहला कौन सा एग्जाम होता है? प्रीलिम्स। इट इज नॉट इवन प्रीलिम्स, इज स्टिल कि तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होती है एंड ऑल दोज। स्क्रीनिंग में वो भी नहीं है, इट इज इवन लेस देन प्रीलिम्स। मेंस तो हो गया जो मेन एसएसबी है, बट जो प्रीलिम्स है इज लिटिल हायर देन स्क्रीनिंग इन। समझ गए? ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन स्क्रीनिंग इन? 3 tests that take place in your screening test. First one, मालूम होगा तुम लोगों को सबको? Yes, sir. क्या है पहला? IQ टेस्ट। पहला IQ. जिसको एसएसबी टर्मिनोलॉजी में OIR बोलते हैं, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इट इज बेसिकली IQ टेस्ट। I don't have to teach anything on IQ test. What type of questions is asked? कोई IQ टेस्ट किया है अभी तक? नहीं सर। करो पहले। जो मैंने दे रखा है उसमें भी सैंपल है। मैं IQ टेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं नहीं कराऊंगा? क्योंकि मेरे कराने से आपकी IQ टेस्ट इंप्रूव नहीं करेगी। आपकी IQ टेस्ट में बेहतर रिजल्ट होगा अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। साइंस स्टूडेंट्स, Yes, sir. बोथ ऑफ यू, 12वीं के बाद IIT का एग्जाम भी दिया होगा, Yes, sir. इंजीनियरिंग का दिया होगा, दिया था, कोचिंग भी किया होगा, Yes, sir. किए थे ना? Yes, sir. क्या कोचिंग करने से IIT एग्जाम पास हो जाता है? नहीं सर। कैसे पास होता है? पढ़ने से। जो मेहनत करता है। मास्टर जी एक ही चीज सबको बताता है, मास्टर जी सबको एक ही चीज पढ़ाता है, उसमें से एक लड़का पास हो जाता है, एक लड़का फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस लड़के ने समझा क्लास में, जाके खुद पढ़ाई की, मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, वो पास हो जाता है। जो लड़का या तो क्लास में समझा नहीं, समझना जाके खुद पढ़ा नहीं, समझा पढ़ा भी तो प्रैक्टिस नहीं किया, कहीं पर उसकी अपनी कमजोरी रह गई, इसीलिए वो नहीं पास कर सका। ठीक बात कि गलत बात? सही बात है, ठीक है। उसी तरह IQ टेस्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई 30 मार्क हाँ वाला सवाल नहीं होता। तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को बता देता हूं मैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देता हूं। अब जैसे देखो, ये एक IQ टेस्ट है, देखो नजदीक आके, ये सारा तुम्हारे उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब तुम उसको मेंटल एबिलिटी बोलो, चाहे जो भी अंग्रेजी में नाम दो, इट इज बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सिंपल ऐसा जो 10वें क्लास का बच्चा भी करेगा और PhD वाला भी करेगा, दोनों करेंगे। सेम सवाल, Yes. सेम सवाल दोनों के लिए है।
ये नहीं है कि सवाल उसको नहीं आता, टाइम दे दिया जाए तो सारे कर लेंगे, लगे हैं, कुछ होंगे जो 2-4 गलतियां भी करेंगे, लेकिन अधिकतर कर देंगे। लेकिन आईक्यू टेस्ट होता है अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। आज की डेट में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दिखाई पड़ रहा है, आज के सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। एसएसबी इज नॉट एन एग्जाम बाय द वे, लेकिन ऐसे ही उसमें टाइम बाउंड होता है कि भैया 2 घंटे में 200 सवाल करने हैं, तो जिसकी स्पीड अच्छी होगी तो ज्यादा बनाएगा, जिसकी स्पीड कम है तो स्लो बनाएगा, कम बनाएगा, जिसकी स्पीड अच्छी है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, चाहे उसको आता भले ही कम हो। कि मैं एक बहुत सा मुश्किल प्रॉब्लम दे दूं, वो तो बना ही पाएंगे बहुत थोड़े लोग, बाकी से बनेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा सवाल इसमें होता नहीं, ऐसा सवाल होता नहीं है। सवाल बड़ी सिंपल है, जैसे फाइंड द मिसिंग टर्म 1, 6, 15, समथिंग इज मिसिंग, 45, 66, 91, क्या होगा? अब तो मैंने को जमाना हो गया किए हुए, तुम लोगों को ये देखते ही बोल देना चाहिए क्या होगा। 1, 6, 15, blank, 45, 66, 91, 28। ओके 28। तुम बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई तुम बता, इतना टाइम लगाओगे तो तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ। 30, 28, दो ने बोला 28, एक ने बोला 30। वाई 28? चलो पहले तुम बताओ भाई। 28 जोड़ा तो कैसे से हिसाब से किया ना? 5 + 1 6। 1 में क्या 6 हुआ? 6 तो 6 ही है। 5 + 1 is 6, 4 + 5 is 6, 6 + 6 is 6, तो 2 + 8 is 6, 28। तो कैसे हुआ 28? 1 6 15 28। तुम 28 बोल रहे हो ना? हाँ तुम बताओ भाई। सर इसके बीच का डिफरेंस यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे सर 21 है। हाँ यहाँ पे उससे 25 है। हाँ। इसलिए इसके बीच में 5, 9, उसके 9 + 4 13 होगा। हाँ 13 प्लस से वो इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस। ओके 4 से इंक्रीज हो रहा है, तो 5 + 9, 9 + 4 13 to 28, 13 + 28 + 17 45 प्लस 21 प्लस 25। तो देखो लॉजिक दिखाई पड़ गया ना? तूने 30 बोला था भाई किस हिसाब से? क्वेश्चन देखा नहीं था सही। हाँ समझ में आई? बहुत मुश्किल था बनाना, है बहुत आसान, लेकिन ये मैं पढ़ाने का मेरे को कोई फायदा नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा, एक पढ़ा दिया, अगला कुछ और आ जाएगा। तो पढ़ाने से ये आप खुद बैठ के जितना करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। और ये स्पीड क्या कमाल है कि पूरे दिन आपको दे देना तो आप सब जोड़ के बोल दोगे कि साला कितना होगा। वहां पर हर टेस्ट के लिए जो आईक्यू टेस्ट होता है 2 सेट आपको दिए जाएंगे, एक के बाद एक, ठीक है? हर की अपनी टाइम होती है, कोई 10 मिनट, 11 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 17 मिनट का, कोई 20 मिनट का। 20-25 मिनट से ज्यादा का कोई सेट नहीं होता। और इस तरह के 2 सेट दिए जाएंगे। मैथमेटिकल हो गया, कुछ अलग तरह के होते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है? फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, ACFJ, ABCDEF, हैं? तो समझ गए? अगला देखो क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज,
एनालॉजी, जायंट इज टू ड्वार्फ, जायंट इज टू, अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, जायंट इज टू ड्वार्फ, जीनियस इज टू, ऑप्शन नहीं दिया, तुम ऐसे बताओ अंग्रेजी भाई, मतलब समझ में आया? तो जीनियस का उल्टा क्या होगा? जो तुमको ऐसे समझ में आ जाएगी तो ऑप्शन देखने में आसानी होगी। तो ऑप्शन ढूंढ के ही अगर करना है अंग्रेजी तो फिर तो कष्ट है, फिर गलती हो जाएगी। हिंदी में बता दो जीनियस का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। क्या बोलेंगे मूर्ख को? डम, DUMB। डम मतलब होता है गूंगा, डम मतलब मूर्ख नहीं होता। फूल का मतलब होता है मूर्ख, FOOL। तो अब देखो कि उस तरह से मिलता हुआ कौन सा शब्द है, समझ में आया? इसलिए अंग्रेजी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज इसमें करना है प्रैक्टिस। इसकी तो किताब आती है, तुम लोगों के पास टाइम है, किताब खरीदो, उसमें 100 सेट होंगे, ऐसे 200 सेट होंगे। रोज करो आधा घंटा। समझ में आया? तुमको भाई टाइम कम है, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो। That will improve your speed. Why I am saying this? That will improve your speed of doing it. और आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप ज्यादा कर पाओगे, तो आपके ज्यादा अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 2 पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को SSB छोड़े हुए 5 साल हो गया। Unless the pattern had changed, which should not have, but never know it might have. ये जो IQ टेस्ट होता है, जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होता है ना? इसमें नहीं होता। SSB में जो IQ टेस्ट लेते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका क्या तात्पर्य आप निकालते हो? मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों में फर्क है जो आप बोल रहे हो। SSB में एक चीज और ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आप बोलते हो समझ के बोलो कि क्या बोल रहे हो। मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए और सारा अटेम्प्ट करना चाहिए, दोनों में फर्क है। आपने पहले बोला मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, वो तो नेगेटिव मार्किंग होगा तो भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए। सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि करना चाहिए? कर सकते हैं और करना चाहिए में बहुत फर्क है। मैंने अभी बताया, जो आप बोलते हो, क्योंकि जो आप बोलते हो मैं अगर सुनने वाला हूं तो मैं वही सुनता हूं, वही समझता हूं जो आप बोलते हो, उसका जो मतलब है। आप क्या कहना चाह रहे थे वो मैं नहीं समझता। समझ में आई बात? कि आप कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ दिया। भैया कहना आप क्या चाह रहे थे, दैट गॉड ओनली नोज। आई नो व्हाट यू से। आप अगर बोलते हो कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए तो मैं समझूंगा कि बोल रहे हैं ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। ऐसे तो भाई नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं 20 अटेम्प्ट करता 50 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं 30 कर लूंगा। समझ में आया? सो रीड इट। जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया होता है उसमें लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। पढ़ो। जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था पहले, अभी भी शायद नहीं होता होगा। सो इफ देखते हो टाइम खत्म हो रहा है
सब में ABCD लिखना होता है, आखिर में 5 बचे हुए हैं, कम से कम 5 में A ही लिख दो, एक तो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? खाली नहीं छोड़ना, खाली छोड़ोगे तो ऐसे भी 0 है, गलती से एक ठीक हो गया 5 में से तो 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अकल लगाने वाली बात है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर अक्ल। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट एस्पेक्ट मैं ऐसे बता देता हूं, पहले आपने पढ़ भी लिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो। SSB is not a test of your knowledge. SSB tests your personality. Knowledge is just one part of your personality. Knowledge is not your personality, but knowledge is just a part of your personality. And in that also, what is more important is how you use that knowledge. आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो आपने देखा, पढ़ा, समझा, उसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, अपने एडवांटेज के लिए। हर सिचुएशन में अपने एडवांटेज के लिए, जिससे कि आप बेहतर कर सकें। एडवांटेज व्हेन आई से, आई डू नॉट मीन टू पुट डाउन समवन। एडवांटेज इज टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ अ गिवन सिचुएशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। IQ टेस्ट, प्रैक्टिस अ लॉट। जितनी करोगे उतना बेहतर कर पाओगे। एंड OIR plays a role in your screening in. It has a role in your screening in. I will not explain you. You don't need to know what is its role. You don't need to know. But suffice to say, it has a role. If you are able to land up, OIR जो होते हैं 5 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the lowest, 1 is the best. Clear? Yes, sir. If you are OIR 1, if you happen to be, you have very high chance of getting retained. Clear? Yes, sir. If you are OIR 4 and 5, if you are OIR 4 and 5, you have hardly a chance of getting retained in screening. You have hardly a chance. चलो अब तुमको बता ही दूं मैथमेटिकली, लो एक कागज दो, बता ही देता हूं जो तुम लोगों को शक न रह जाए। दो एक पन्ना दिखाओ, देखो 3 असेसर होते हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग इनमें एक होता है PPDT, ठीक है? क्या होता है? PPDT. पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओके। PPDT में there are 3 assessors who are sitting: psychologist, interviewing officer, GTO। यही 3 होते हैं जो आपका SSB लेते हैं। ये 3 बंदे वहां बैठे होते हैं। तीनों में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, एक GTO होता है। Yes, sir. आपकी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन में आप एक स्टोरी, मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है उसमें। आप एक स्टोरी लिखते हो, फिर उसके उस स्टोरी के ऊपर में एक ग्रुप में डिस्कशन करते हो, ठीक है? और इसकी आपकी स्टोरी और आपकी डिस्कशन ये तीनों लोग सुनते हैं। उसके बेसिस पर ये लोग 3 तरह के रिमार्क देते हैं।
YDN. Y means yes. D means doubtful, N means no, अब इसका तीनों का मतलब क्या है? Yes means he is fit to pass SSB. He is fit to pass SSB, not pass screening test. Pass. SSB, ये आपकी एक कहानी सुन के और 10 मिनट का डिस्कशन देख के कोई बोल सकता है कि आप एसएसबी पास करने लायक हो, 15 क्वालिटी आपके अच्छे हैं, बोल सकता है? बहुत मुश्किल है ना? कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी असेसर के लिए यस देना बहुत मुश्किल है। वो 100, 200, 400 बंदों में एक बंदे को यस देता है। मैंने हजारों बंदों के स्क्रीनिंग किए होंगे, मैंने कभी किसी को यस नहीं दिया। हजारों में, कितनों में? हजारों में मैंने एक को भी यस नहीं दिया, क्योंकि मेरे को उतनी देर में पता नहीं चला कि भैया ही इज फिट टू बिकम एन ऑफिसर। यस का मतलब क्या है? ही इज फिट टू बिकम एन ऑफिसर। मैं नहीं बोल सकता। कुछ एसेसर्स देते हैं, वो इसलिए देते हैं एक आध बंदे को, 200, 400 में एक बंदे को, क्योंकि बोलते हैं यार ऐसे ही कोई स्क्रीनिंग नहीं होता, कुछ करके तो रख लो 2-4 बंदों को कि एसएसबी तो चलाएं, नहीं तो एसएसबी बंद करना पड़ेगा। समझ गए? तो यस मिलना बहुत मुश्किल है। नो, नो का मतलब है कि भैया ये बंदा ना एसएसबी पास करने लायक नहीं है, ये बंदा। ये मैं एक कहानी सुन के और 20 मिनट का लेक्चर सुन के बोल सकता हूं। बंदा डिस्कशन में मुंह ही नहीं खोला, क्या बोलूंगा? हाँ, बोला तो बेवकूफ की तरह बोला, क्या बोलूंगा? कहानी लिखी थी, उसमें कोई सुसाइड कर रहा है, कोई पेड़ से लटक रहा है, कोई रेप कर रहा है, क्या बोलूंगा? तो नो वाले बहुत मिलते हैं, नो वाले बहुत मिलते हैं। बच गए बीच वाले कि भैया ये नो तो नहीं बोल सकता हूं इसको, कि ऐसा कुछ बुरा इसमें नहीं था। यस भी नहीं बोल सकता हूं कि ऐसा कोई 30 मार खाने वाली बात भी नहीं थी, तो वो क्या हो गया? डी। तो अगर जैसे मैं जो देता था कि मान लो 20 बंदे एक ग्रुप में हैं, ठीक है, तो 5 से 6 बंदों को डी और 14 से एन। समझ में आई? लगभग सारे असेसर ऐसे ही देते हैं, लगभग ये तीनों असेसर ऐसे ही देते हैं, ठीक है। अब तीनों ने वाई तो मिलना नहीं, तो इसलिए वाई की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन OIR 5 सबसे पहले। OIR 5 वाले को रिटेन करने के लिए जरूरी है कि कम से कम आज के डेट में ये भी चेंज होता रहता है, ये भी वेरी करता रहता है। इसकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं दिल्ली से। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, DIPR, वो इसकी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। तो ये चेंज करता रहता है, लेकिन प्रोबेबली आज के डेट में जो होगा, ये मैं बोल रहा हूं जब मैं था उस समय का, आज के डेट में है शायद कम से कम एक बंदे ने वाई दिया होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। एक OIR 5 वाला, एक तो OIR कमजोर है भाई, ये 15 मिनट में कोई उसको वाई दे दे, कम से कम एक वाई प्लस आई थिंक OIR 4 है, शायद, ठीक है। OIR 3 पहले था भी यार, कि चेंज कर गया हो तो ये चेंज करता है, इसको स्टैंडर्ड घटाते रहते हैं। जब मेरे टाइम का मैं बता रहा हूं था 2Y and 1D, OIR 4 was 1Y and 2D, OIR 3 was 3D, OIR 2 2D, OIR 1D। अगर इतना मिल गया तो वो स्क्रीनिंग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझे? OIR ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, OIR इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं बोलूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट PPDT है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज विद इन योर कंट्रोल, दिस इज विद इन योर। दोनों बिहारी हो, कहाँ के पढ़े हुए हो? अब कौन से स्कूल में? अब स्कूल में 12वीं तक कहाँ पढ़े हो? कॉलेज के मेरे को लेना देना नहीं है। एक चीज समझ लो, SSB मैंने बोला ना, SSB मैंने जब दिया था ना तो मैं 10वीं पास करके गया था। कौन सा क्लास? आज की डेट में भी SSB का स्टैंडर्ड वही है, थोड़ा सा घटा दिया है, थोड़ा सा दिखाया ना तुमको कैसे कैसे घटाया है। तो SSB का भी स्टैंडर्ड घटा दिया है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के लड़के नहीं मिलते हैं। स्कूल बताओ कौन से में पढ़े थे? कॉलेज MLT कॉलेज है, आजकल 12वीं कॉलेज में पढ़ाई होता है, 11th वही 11th 12th कहाँ पर है ये कॉलेज? सहरसा में। अब कहाँ पर? अब सहरसा में मैं 5 साल रहा हूँ, 7 साल रहा हूँ। अच्छा। पुरानी जेल देखी है सहरसा की, रेलवे स्टेशन के पीछे? हाँ, मैं वहां पर 5-7 साल रहा हूँ, मैं वहीं से गया था NDA। पूरा बाजार सहरसा। Okay, I don't know how that school is. In any case, I joined NDA in year 78. कौन से साल? 78। शायद तुम लोगों के पिताजी बच्चे रहे होंगे, ठीक है। तो मैं 10वीं करके गया था। What I am saying is, generally बिहारी बच्चों का, बिहार बोर्ड से पढ़े हो? CBSE, ICSE, सब तुम लोग गए गुजरे हो। बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स इज बेटर देन CBSE एंड ICSE। आई थॉट तुम लोग बिहार बोर्ड के पढ़े हुए। बिहार बोर्ड का साइंस इज टफर देन CBSE एंड ICSE। गलत बोल रहा हूं? नहीं पता? तो तुमने बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं देखा? कभी देखा नहीं उल्टा के कि क्या पढ़ाई होता है? जो भी है नॉट रेलिवेंट। प्रैक्टिस इट, improve your OIR. You should be within this two.
You have time, practice, you should be OIR 1, 2. Don't go to 3. It is very difficult to get 3D. It is very difficult कि तीनों असेसर आपको D दे दें, is very difficult. I'll tell you how, on what all basis they give you D. I'll tell you that. Possible OIR 1 हो, कभी कभी क्या होता है OIR 1 बहुत कम होते हैं, एक बैच में 1-2 बंदे ही होते हैं, और ग्रेजुएशन वाले में तो साले मिलते भी नहीं हैं। एनडीए वाला जो बैच होता है ना, उसमें मिल जाते हैं 2-4, ठीक है। बाकी में OIR 1 मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिरले ही कभी कोई मिलता है। तो अगर आप OIR 1 हो और तीनों ने N दे रखा है, तो तीनों का कॉन्फ्रेंस होता है फाइनली कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। जब तीनों बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे तो ये N है, साला है OIR 1, लेट्स सी हिम। क्या बोलते हैं? जस्ट ऑन द शेयर वेट ऑफ OIR यू आर केप्ट। एक बंदा उनसे बोलता है यार एक तू अपना ना चेंज करके D दे दे, तो इसमें से कोई एक बंदा D दे देता है, और उसको, बिकॉज ये जो देते हैं वो लिस्ट अटैच होके जाती है दिल्ली, तो एक बंदा D दे देता है, तो उसको रख लेते हैं। तो ऑन द शेयर वेट ऑफ योर OIR, खास करके तुम्हारे जैसों के लिए जहां पर कि बड़ी मुश्किल से OIR 1 मिलता है, तुम्हारे लिए भी। TES वालों का तो और बुरा हाल है। OIR 2 काफी होते हैं, काफी नहीं बोलूंगा, बल्क OIR 3-4 होते हैं, 5 भी बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। हर बैच में 2-4 मिल ही जाते हैं OIR 5, 3-4 ज्यादा होते हैं, थोड़े से लोग OIR 2 भी होते हैं। प्रैक्टिस इतना करो कि यू शुड नॉट गो बियॉन्ड OIR 2। क्लियर? ओके, सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ OIR। नाउ आई विल कम टू तैयारी का तरीका बता दिया। कम टू PPDT। नाम क्या है? पिक्चर परसेप्शन एंड द टेस्ट इज as the name is. You are shown a picture. आप बैठे हुए हो टेबल कुर्सी पर, सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आता है। That picture is for 30 seconds. कितनी देर के लिए? 30 seconds. Half a minute. 30 seconds. Half a minute? Yes, sir. पक्का? Yes. You are allowed to see the picture for 30 seconds, half a minute. After which the picture goes and you get 4.5 minutes. How many minutes? 4.5. टोटल 5 मिनट। आधा मिनट पिक्चर देखने के लिए, 4.5 मिनट में उस पिक्चर के बेसिस पर आपने एक कहानी लिखनी है। अब कहानी क्या होती है? अबे पिक्चर पे कहानी क्या लिखेंगे? तो इमेजिन करके जो पिक्चर में हो रहा है वो तो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन हो गया, कहानी वो नहीं होगी। जो पिक्चर में हो रहा है, इफ यू राइट दैट, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर, दैट इज नॉट अ स्टोरी। स्टोरी इज कि पिक्चर में कुछ हो रहा है, पिक्चर में कुछ हो रहा है, तो समथिंग इज हैपनिंग। जो पिक्चर है तो समथिंग इज हैपनिंग ना। दैट समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज something happened. in the past, and because something is happening,
Something happened in the past because of which something is happening now in the picture, because of which something will happen in. Now, if you add the past, the present, and the future, it becomes a Story. समझ में आया? Clear? Yes, sir. In PPDT, once you have done this, और इसको थोड़ा आपका 4.5 मिनट जो मैंने बोला स्टोरी लिखने के लिए, उसमें से 15 सेकंड और बर्बाद हो जाता है. क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि वो जो पिक्चर आपने स्टोरी लिखी है उसकी एक हेडिंग भी दो, स्टोरी का नाम भी दो. आपने स्टोरी में आपने उस पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स देखे, आपको एक ऐसे पन्ना दिया रहता है, आपको लिखने के लिए एक शीट कागज मिलता है, ठीक है. वहां पर एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप खाली बना होता है, उसमें यू आर सपोज टू मार्क कि आपने कितने कैरेक्टर देखे, 1 2 3 4 5 जो कैरेक्टर देखे. यू राइट डाउन हिज एज एंड सेक्स. सेक्स में कौन कौन सा सेक्स होता है? मेल फीमेल. न्यूट्रल नहीं होता. उसमें दिया रहेगा ना सर, किसमें उसमें मार्क करना है. दिया नहीं रहेगा, आपको लिखना होता है. हाँ, होता है या नहीं होता है? Yes, sir. होता है. ना आपको कोई दिखे हिजड़ा, आप लिख सकते हो. हिजड़ा क्या है? मेल है फीमेल है? Transgender. ट्रांसजेंडर है ना? वो भी लिख सकते हो ना. अगर आपको कोई दिखे, नहीं दिखना चाहिए. क्या? You should be able to see only male or a female. And then you have to write down his age as you perceive. आपको लगे 25 साल का है तो 25 लोग को, किसी को वो 45 का लगेगा, किसी को 15 का लगेगा. हर आदमी की परसेप्शन अलग अलग होती है. हर आदमी अलग अलग तरीके से एक ही चीज को परसीव करता है. अपनी परसेप्शन से आपको जो लगे वो आप लिख दो. सो दैट विल टेक 10-15 सेकेंड्स कि वो लिखना, हेडिंग लिखना. उसके बाद जो 4.25 मिनट बच गए उसमें यू राइट डाउन अ स्टोरी. एंड यू स्टार्ट ऑफ ए स्टोरी. Ram was a this Atram Patram or whatever name you want to. Why did I say Ram? Any idea? It is a common name. It's a common name. What else? Any other idea? He is a good person. He's a good person. Okay. Any other idea? Okay. Both these ideas that you said, it's a common name, it's a good person. Ram was a good person. One imaginary Ram, which existed or not, is no one's baby. Some accept it, some don't. But I'll still write Ram. The reason is, it's a very short name. It has got only 3 letters. alphabets. It has only. I have little time. So I should save time. I want to write, what's your name? You said? Shanu. शानू. पूरा नाम क्या है? Kumar Shanu. कुमार शानू. तू गाना करता है क्या? No. कहाँ का रहने वाला है? मुंगेर दिया है. वहाँ मुंगेर में कड़ी गाँव. सल्ललपुर. और ये पंजाबी बोल गया बीच में मैं. तो कोई नहीं, वो आदत हो गई. ओके. तुमने क्या बताया था? कुमार शानू तो गाना गाएगा. हाँ. आशीष. इसका भी तुम्हारा वेदांत. अब ये लिखिएगा वेदांत परमार. अब 5 सेकंड तो नाम ही लिखने में लग गया. और कोई लिखेगा राम, 1 सेकंड में लिख देगा. तो यह सेव्ड 4 सेकंड्स ना. अंडरस्टूड? Yes, sir. That is using, that is how you are
psychology is, now your intelligence is tested. Not directly. Practical intelligence. पढ़ा होगा तुम लोगों ने practical intelligence क्या होता है? पढ़ा तूने? क्यों नहीं पढ़ा? तेरे पास नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ा? So, छोटे छोटे नाम ये कैसे आएंगे? जो सीधा जाके वहां कहानी लिखेगा ना, unless someone is, mind is accustomed, attuned, he will not get such things. But if you have practice, you will get it. Ram and Rahim were friends. Some chap writes. One person writes, Ram and Rahim were friends. Another person writes, Ram and Shyam were friends. दोनों में क्या फर्क है? एक लिखता है, रहीम एंड रहमान वेयर फ्रेंड्स. तीन लोगों ने तीन चीज लिखा. तीनों में क्या फर्क है साइकोलॉजिस्ट के लिए? वो किस प्रकार से कोई रिलीजन के प्रति उसका माइंडसेट है वो बता सकते. थोड़ी सी झलक देता है, थोड़ा झलक देता है कि भाई इसमें रिलीजियस फीलिंग कितनी है, थोड़ी झलक दिख जाती है. वो बाद में कहीं और उभर के आ जाएगी, फिर वो कंफर्म होगी. इतने में ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन झलक दिखती है. सो व्हाट इज प्रेफरेबल व्हेन यू राइट टू फ्रेंड्स? राम एंड जॉन, जॉन एंड रहीम. हैं? समझ में आया? ओके. व्हाई टोल्ड यू? इट गिव्स यू because he is not a religious fanatic. You don't want religious fanatics in Fauj. Not only religious fanatics, Fauj is the only organization in the country which is actually secular. Which is actually जहां पर धर्म से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, आपकी कास्ट क्या है. नो वन हैज एनीथिंग टू डू विथ योर रिलीजन और कास्ट. एवरीवन इज सेम. I commanded a unit which had almost 50% Hindus and 50% Muslims, including Sikhs in Hindus. सिक्स को तो सरदार को पहचान जाते हो, पगड़ी सगड़ी बांधता है. यू कुड नॉट मेक आउट टू चैप्स इफ ही इज ए हिंदू और ए मुस्लिम एनीवेयर एक्सेप्ट वन प्लेस, एंड दैट वाज खाना खाते हुए लंगर में. क्योंकि मुस्लिम्स हलाल मीट खाते थे और हिंदू झटका मीट खाते थे. इसके अलावा कहीं पता नहीं चलता था इसमें कौन मुसलमान है कौन हिंदू है. सो दैट टाइप ऑफ अ फीलिंग इज गुड. योर पर्सनैलिटी शुड बी दैट टाइप. ओके. सो you get 4.5 minutes to write a story. At the end of 5 minutes, the instructor who is conducting your test will say stop writing and your sheet will be collected. ठीक है? जमा हो जाएगा, आपको ब्रेक कर दिया जाएगा. You will have a small break where you can go for toilet, पानी पीना, ट्रम. And then, so picture perception part is over, discussion is left. So as your turn comes, you will be made to sit down in a hall. Okay? In a semicircular way, not as a Round table. not round table, semicircular. दोनों में फर्क है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. So here you are made to sit in a semicircle, or not even a semicircle, maybe an arc, so that
इधर वाले और इधर वाले आर फेसिंग आमने सामने, और ये सामने वाले भी सबको एक दूसरे को देख सकें। अगर एक लाइन में हो और बिठाते हैं 12, 15, 16, 20 बंदों तक, तो 20 बंदों को अगर एक लाइन में बिठा देंगे तो उधर वाले को तो दिखेगा ही नहीं इधर कौन है, ना इधर वाले को दिखेगा उधर कौन है। सो on a curve so that everyone can see everyone's face. You have your chest numbers, so you are putting on your chest numbers and you sit down in the serial order of your chest numbers. सेमी सर्कल में बैठ गए या आर्क में बैठ गए, आपके सामने 3 असेसर आके बैठ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। उसमें से वन ऑफ द असेसर्स, जनरली अ जीटीओ, विल गेट अप एंड गिव यू द इंस्ट्रक्शंस कि क्या होने वाला है। An instruction is simple, that you saw a picture. Now here you keep sitting and keep talking. To start off, each one will either read out his story or will narrate his story. क्योंकि जब आप बैठ जाते हो चेयर पर तो आपने जो लिखा था कहानी, आपकी कहानी आपको दे दी जाती है, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है यू हैव 30 seconds या 1 minute टू गो थ्रू द स्टोरी दैट यू रोट। आप कर लेते हो, फिर आपको बोलते हैं कि ओके, फोल्ड योर स्टोरी एंड कीप इट बिलो योर थाई और पास योर स्टोरीज। कोई एक बंदा आएगा, आप सबकी वो शीट कलेक्ट कर लेगा। इट इज बेसिकली टू रिफ्रेश योर मेमोरी एज टू व्हाट यू रोट, या आपके हाथ में वो पन्ना छोड़ देंगे, फिर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि यू हैव गॉट योर ओन स्टोरी। सभी बोलोगे यस सर। ओके, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल कि एज योर टर्न कम्स, कीप सिटिंग एंड कीप टॉकिंग, यू डोंट हैव टू गेट अप। रीड आउट द स्टोरी दैट यू हैव रिटन, ये बोल सकते हैं, या अगर आपसे पन्ना ले लिया है तो बोलेंगे नरेट द स्टोरी दैट यू हैव रिटन। समझ में आया? क्लियर? फिर बोलेगा कि यू मे नॉट हैव कंप्लीटेड योर स्टोरी, क्योंकि हो सकता है कि आपने स्टोरी कंप्लीट ना कर पाए हो। तो इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड स्टोरी, यू टेक 1 line, you can add 1 line to complete your story। कि अपनी तरफ से आप एक लाइन एक्स्ट्रा बोल सकते हो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो सबने हो गई सबकी, बोला एज योर टर्न कम्स, नरेट और रीड आउट योर स्टोरी। वंस one person has narrated and he has finished, the second person should automatically start narrating his story. This way, we will start off with chest number 1, go in numerical sequence till we finish off with chest number 20. Once chest number 20 has finished reading his story, you can start your discussion. And the discussion will be you saw the picture in the morning, all of you have written a story based on the same picture. The discussion will be to arrive to the best possible story that can be written based on the picture, not as to whose story is the best, but discussion will be to arrive to the best possible story. We will have the discussion for say about 15 minutes or 10 minutes or 20 minutes, whatever he wants to say, at the end of which anyone from the group can narrate the story that you have decided, and with that we'll come to the end of the discussion. Clear? ध्यान रखने वाली बात जो बोला ना कि in the end anyone to narrate the story. No group has ever got chance where someone had to narrate the story.
because 15 or 20 minutes that they give you is too little a time for 20 chaps or 15 chaps to discuss and arrive to the best possible story. Okay? So the same officer will get up. Okay, gentlemen, your time is up. You have had a good discussion and you have generally been, coming to some consensus on a common story. Well done. And you can please get up and move. हो गई आपकी डिस्कशन खत्म. क्लियर? ओके. अब किस बेसिस पर वो देता है Y, D और N? मैं Y और N को आउट कर देता हूं. मैं अब केवल बताता हूं बेसिकली कि आपको क्या करना है, किस बेसिस पर देता है तो आपको वो करना चाहिए. पहली बेसिस कि आपने जो स्टोरी लिखी वो स्टोरी कैसी थी, कितनी दमदार स्टोरी लिखी है. दमदार स्टोरी क्या होती है? व्हाट इज पॉजिटिव? तो एक लेसन रहना चाहिए. व्हाट इज लेसन? मॉडल सम कुछ सीख होना चाहिए, कुछ मॉडल होना चाहिए. मॉरल होना चाहिए. क्या मॉरल? व्हाट मॉरल? समथिंग गुड बिहेवियर. Okay. गुड वर्क. ओके, आई विल टेल यू अ सिंपल थिंग. कोई भी जब आप कहानी, सेम चीज सेम कहानी जो यहां पर आपने एक लिखी है, अगर आप रिटेन हो जाते हो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप 10-11 लिखोगे, एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक, जिसके ऊपर आपको साइकोलॉजिस्ट असेस करता है आपकी पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी कैसे असेस की जाती है? एक स्टोरी से. जब आप कोई स्टोरी लिखते हो तो स्टोरी में कोई हीरो होगा ना, या हीरोइन होगी, कुछ तो होगा. या तो आप लड़का देखोगे या लड़की देखोगे, या तो लड़का कुछ करेगा या लड़की कुछ करेगी, या कोई भी, तो एक हीरो होगा. आयल से आप लोग लड़के हो तो एक हीरो होगा. अगर लड़कियां होती, आजकल लड़कियां भी आती है ना, तो वो हीरोइन बोलता मैं. एक हीरो होगा आपकी कहानी में. वो हीरो जो कहानी में करता है, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट ये मानता हूं कि गिवन दैट सिचुएशन आप वही करोगे. अब बताइए अच्छी स्टोरी क्या हुई? मॉरल वैल्यू. हाँ, व्हाट इज अ गुड स्टोरी नाउ? समझ में आया व्हाट इज अ गुड स्टोरी? समझ में आया? हाँ या ना बोलो. आपकी पर्सनालिटी मैं चेक कर रहा हूं, असेस कर रहा हूं. कैसे असेस करता हूं? स्टोरी कि आपने जो स्टोरी लिखी उसमें जो हीरो है वो आप हो, आप वो कर रहे हो. अब अगर वो हीरो अच्छा आदमी, अच्छा काम कर रहा है तो आप अच्छे हो. आप वो गलत कर रहा है, गलत हो रहा है तो गलत हो. दूसरा, एक पिक्चर है, हर आदमी तो वही पिक्चर को देख रहा है. किसी भी पिक्चर में देखने वाले का नजरिया इंपॉर्टेंट है, पिक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं समझ में आई? नहीं आई होगी. अब मैं बताता हूं इसको दूसरे तरीके से, ठेठ भाषा में बोलते हैं, द ब्यूटी लाइज इन द, अंग्रेजी बोलो भाई, इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर.
कोई चीज खूबसूरत नहीं होता या बुरा नहीं होता देखने में। वो जो देखने वाला है ना, उसको बुरा या अच्छा लगता है। तो जो पिक्चर है उसमें आपको अच्छी चीज भी दिख सकती है एक बंदे को कौन लड़का बेहतर है, इसको अच्छे तो ये तुम थोड़ा सब समझते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिस्ट भी यही देखता है कि भैया ये लड़का पिक्चर में अच्छा देख रहा है या बुरा देख रहा है। अच्छा देख रहा है तो लड़का अच्छा है, बुरा देख रहा है तो लड़का बुरा है। पिक्चर अच्छा या बुरा नहीं है। पिक्चर फोटो में दिखाया, ऐसे खड़ा है, एक फोटो है, ऐसे एक खड़ा है औरत और एक मैं मर्द हूं, ऐसे किए हुए हूं। क्या देखे? नहीं, चक्कू है ये, पेन देखकर नहीं, चक्कू लेके ऐसे खड़ा हूं। हाँ, अब बताओ। वो जो मेल है सर, जो लड़की को ट्रेनिंग करवा रहा है, सिखा रहा है ये कैसे डिफेंसिव रहना है। अब देखो, अब मैंने चूंकि अभी बताया ना, तो तुम लोग ये सब बोल रहे हो। ऐसे सब पहले क्या बोलेंगे कि चक्कू दिखा रहा है भाई, पर में पैसे निकाल, पर्स निकाल। सब यही पहला रिएक्शन होता है ना। देखने वाले का नजरिया है, देखने वाले का आप। और क्योंकि समय कम होता है, तो आप अगर जिंदगी में गलत नजरिए से किसी चीज को देखते रहे हो तो आप गलत देखोगे। आपके पास उतना समय नहीं होता सोचने का। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अगेंस्ट टाइम, देयर इज नो टाइम, इट यू आर अंडर टाइम स्ट्रेस। आपके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है कि आपके पास वक्त नहीं है सोचने का। आप बिना सोचे हुए आपकी जहन में जो है, आपकी पर्सनैलिटी में जो है, वही निकल के आएगी। तो अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना, अच्छा देखना शुरू करो, अच्छा बोलना शुरू करो। क्लियर? यस सर। तीसरी चीज, प्रैक्टिस करो कहानी लिखने की। क्या करो? तो ये तो हो गया आपका कहानी पार्ट। उसके ऊपर जो 3 असेसर बैठे हैं वो असेस करते हैं कि इसकी कहानी कितनी अच्छी या बुरी है। ठीक है? अनलेस द स्टोरी इज एक्चुअली बैड, द स्टोरी इज एक्चुअली इन पुअर टेस्ट, वेयर द हीरो इज एक्चुअली अ पुअर पर्सनैलिटी, बैड पर्सनैलिटी। You don't get low based on your story. Clear? Yes. अगर दरमियाना स्टोरी है तो बोलते हैं चलेगा भाई, पहली कहानी है, चलेगा। Then what is important? The more important issue is taking part in the discussion. And taking part in the discussion, how? Taking fruitful part in the discussion. What is fruitful part? डिस्कशन का जो एम है, उस एम को पाने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? एम क्या है? बेस्ट स्टोरी कंक्लूड करना है। कंक्लूड करना है एम। बेस्ट स्टोरी, We have to make बेस्ट स्टोरी, we have to make a best story. बेस्ट पॉसिबल स्टोरी, नॉट टू सेलेक्ट द बेस्ट स्टोरी। 20 लोगों ने कहानी लिखी है तो सबसे अच्छी कहानी किसकी है वो सेलेक्ट करना नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी तो क्या होगा कि हर कहानी से अगर कुछ कुछ अच्छी बातें उठाएं और बनाएं तो सबसे अच्छी कहानी बनेगी। वो करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है। जितना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन है उतना अच्छा है, जितना कम कंट्रीब्यूशन है उतना बुरा है। क्लियर? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट
Discussion part is very, very, very important. And your YDN basically depends on your discussion aspect in the PPDT. Depends basically on discussion. story is important. Not that की story is कुछ भी लिख दो, नहीं. Because वो फिर मिलाते हैं कि आपने डिस्कशन में कितना अच्छा बोला, क्योंकि आपने स्टोरी सुनाई है, उसने स्टोरी लिख रखी है. तुम बोलोगे ना कैसे याद रहता है? ऐसे ही उनके पास शीट होता है, उस पर हर चेस्ट नंबर लिखा होता है. ठीक है, हर चेस्ट नंबर के सामने वो लिखते जाते हैं कि किसने क्या कहानी कही. सुन भी लिया मैंने कहानी लिख भी ली. जब आप डिस्कशन करते हो तो जो बोल रहा है वो भी मैं लिखता जाता हूं, और जब आप चले जाते हो फिर मैं उसको देख के YDN सामने में भरता हूं. समझ गए? तो स्टोरी लिखना और फिर डिस्कशन में अच्छे से हिस्सा लेना. डिस्कशन में ये बोलना, यार द पिक्चर वी हैव सीन इज अ वेरी गुड पिक्चर एंड वी ऑल मस्ट डिस्कस वेल ऑन दिस पिक्चर एंड मेक अ वेरी गुड स्टोरी. किसी ने डिस्कशन में ये बोला, क्या बोलेंगे? अच्छा बोला? वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया डिस्कशन में. He has only wasted his time, others' time, and the assessor's time. He has no knowledge. जो मैं एज ए असेसर बोल रहा हूं, अब जो ऐसा कोई बोलता है ना, तो मैं क्या बोलता हूं कि दिस चैप हैज नो नॉलेज, नो आइडिया, ये बकवास करता है, ये बेवकूफ लड़का है. उसका 90% नो तो हो गया इतना कहने पर. अच्छा नहीं बोला. Contribute to the aim of the discussion. Gentlemen, we saw 5 people and we saw this. Therefore, it should be this. कि उसने ऐसा किया, ऐसा हो रहा था, इसलिए ऐसा हुआ. इस तरह का डिस्कशन. समझ में आई? Yes, sir. फिर शक या सवाल? Nice. कोई शक सवाल नहीं. तो PPDT क्लियर हो गया? सर वो पूछना था, इनिशिएट करना है या नहीं? जैसे मैंने तो इसकी बात ही नहीं की. आप करो इनिशिएट, आप कर सकते हो तो. नहीं कर सकते हो, मैंने बोला ना कि एक बंदे ने इनिशिएट किया कि द पिक्चर वी सॉ वाज अ वेरी गुड पिक्चर. यू नो, इट टेल्स लॉट अबाउट द सोसाइटी टुडे एंड वी मस्ट डिस्कस वेल टू अराइव टू अ वेरी गुड स्टोरी. आपने इनिशिएट किया तो मैं क्या बोलूंगा? ये बहुत बड़ा बेवकूफ है कि अंग्रेजी बोलना इसको आता है, लेकिन इसको आता जाता कुछ नहीं है अंग्रेजी के अलावा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिहारियों के लिए. तुम लोगों की सबकी अंग्रेजी होती है कमजोर. तुम लोग बन जाते हो दब्बू, मुंह में जवान नहीं होती, वहां बोलते नहीं हो. कुछ नहीं, हिंदी में बोलो, हिस्सा लो, दबा के हिस्सा लो, किसी को दबाओ मत. मान लो तुम लोग 10 दोस्त बैठे हुए हो, तो दोस्तों में एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करते हैं. ये नहीं कि भैया क्या बकवास कर रहा है यार. घर पे फिर भी बोल लोगे, ग्राउंड में दूसरों के सामने नहीं बोलते. टीचर के सामने ऐसा कभी बोलते हो अपने दोस्त को कि क्या बकवास कर रहा है? Nice. अकेले में बोल भी सकते हो. तो 3 टीचर सामने बैठे हैं ना, यू विल नेवर से लाइक दैट. If you say like that, that means there is something wrong with you. I will not say what you do, how you do, because I don't know the situation. I don't know your personality. I don't know your knowledge. I don't know what you have written, what you have perceived in the story. So I can't say you can initiate.
how well you can initiate or how poorly you can initiate. What I'll say, understand it. That's why I'm repeating the same thing time and again. What is important is taking part in the discussion to contribute to the aim of the discussion. Many a times you will find that the group is going on a tangent. Aim kuch aur hai and they started discussing something else. You can tell them, gentlemen, I think we have digressed little from the aim. We had to do this. So I'll suggest we stick to the aim. Even this is good. This boy is focused. Though he has not talked anything on the topic as such, but he has tried to organize the group, bring the group back onto dharra. बोलते हैं ना लाइन पर लाना. तो बंदे में कुछ तो है, अकल है, इसको समझ में आ रही है. समझ रहे हो? Yes, sir. So I will not tell you what to do. If someone tells you what to do, he'll be wrong. Because the situations will change every time. If there are 100 cases, there will be 100 different situations. No two situations will be the same. Your situation will always be different. And possibly no one can give you the answer to all the situations. समझ में आया? Yes, sir. Have I satisfied your question, query? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. मैं नहीं कभी बताऊंगा. ये दुनिया बताती है. जो कोचिंग में जाते हैं ना, तो कोचिंग वाला बताता है कि यू मस्ट इनिशिएट, और वो वहां बेवकूफ बन जाता है. मेरे जैसा ऐसा सर बोलता है, यार क्या बेवकूफ लड़का आ गया. तो मैं तुमको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं कि तुमको बोल दूं तू शुरू कर दे भाई, आता हो या ना आता हो. कभी कभार अगर नहीं मालूम है, इट इज बेटर टू लिसन टू 2-3 पीपल. जो अकलमंद है ना, दूसरों की अकल से भी काम लेना चाहिए. अगर 2-3 बंदों को सुनाना, सबकी कहानी सुनी है, अब पिक्चर भी देखा है, 2-3 कहानी भी सुनी है, तो थोड़ी सी अकल तो उतने में ही आ जाती है. चाहे उसने अपनी कहानी कुछ भी लिखी हो, वो नई कहानी अब गढ़ लेता है, अच्छा कहानी, और देन ही मॉडरेट्स द डिस्कशन. ए गुड पर्सनैलिटी. Now, another very important aspect in this one is those 30 seconds when you watched the picture. उस 30 सेकंड में see all the details of the picture. The more vivid the picture is in your mind, the better will be your story. The better will be your participation in the discussion. Clear?